Very good morning, 10th class. And today I will continue your chapter development. And in previous video, I have discussed body mass index, getting BMI. So, how can calculate BMI? BMI it used to find out whether a person is nourished, undernourished, or overweight. So, students, by the help of BMI, we can easily calculate that a person is perfect. If a person is perfect, very good, and maybe his nourished is very good, undernourished and overweight, यानी रिक्वायरमेंट से ज्यादा वेट और रिक्वायरमेंट से लेस वेट, तो बोथ इज अ टिपिकल और प्रॉब्लम जेनेटिक ऑफ द particular person. So nourished is a very good. So students, how question is how can calculate BMI? So weight of the person in kg. Suppose हमें किसी भी पर्सन का BMI कैलकुलेट करना है तो उसका पहले क्या लेना है, वेट, और वो भी किस मेजरमेंट में, किलोग्राम में. देन आफ्टर वी हैव टू टेक हाइट इन मीटर स्क्वायर. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? यानी जिस पर्सन का भी हमें BMI बॉडी मास इंडेक्स मेजर करना है, हमें उसका वेट लेना है किलोग्राम में, देन आफ्टर उसकी हाइट लेनी है मीटर में, और फिर उसका स्क्वायर करना है. देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, BMI इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट मीटर स्क्वायर. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? सपोज दैट ये रफली डाटा लिया है, कोई भी एक पर्सन है, वेट है उसका 25 किलोग्राम एंड हाइट, for sake of simplicity I have take only 1 meter, getting to 1 का square, it is equal to 25. It is clear to students? यानी we have to take weight in kilogram and height in meter square. So you can easily calculate your BMI, your parents and your grandparents, किसी भी पर्सन का BMI कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जो आपका आंसर आएगा उसको आप कैसे कंक्लूड करोगे, गेटिंग, उसको कैसे एनालाइज करेंगे? इन दिस केस लेस देन 80. यदि आंसर आपका 80 से लेस देन आता है, इट मीन्स ही और सी इज अंडरनरिश्ड. यानी उसको क्या है कि वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं है, वो अंडरनरिश्ड है, उसको अभी वेट गेन करना होगा. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? इफ लेस देन 18, अगर उसका 18 से भी कम आंसर आता है. इफ मोर देन 25, इट इज ओवरवेट. गेटिंग? अगर 25 से आंसर आता है तो इट मीन्स ही और सी इज ओवरवेट, यानी उसको अपना वेट लॉस करना होगा फॉर ए नॉर्मल पर्सन. And last is between 18 to 25 is very good situation, and in this situation nourished people is nourished. It is clear to student? So I have already discussed these things, and one more thing students, for growing children पे apply नहीं होता है. Clear? Adult और जो यंग पर्सन है उसी पे आप इसको BMI को अप्लाई करोगे. So students, we have already discussed this concept BMI, and today I will introduce your new topic HDI, Human Development Index. It is clear to students? HDI, Human Development Index. It is a new concept. So students, you can see your new topic is today Human Development Reports. Getting? And students, you are aware that for measuring and for comparison of individual person as well as country, income is a very important attribute for comparison different countries. In previous video we have discussed that income or per capita income, how can comparison between different states like Punjab, Haryana, Bihar and Kerala. Getting? So, but in this concept, income is a, I am already repeat. Income is a very important attribute for comparison countries. But here you can see income is an inadequate measure. It is not proper. UNDP क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? Income, Human Development Report के अकॉर्डिंग, income is an inadequate measure of the level of development because income has a various limitation. गेटिंग? पर कैपिटा इनकम में आप लोगों ने देखा था कि कुछ जो रिच पर्सन है उनकी भी एवरेज इनकम में आ जाती है, और आपको उसकी लिमिटेशन बताया था मैंने. गेटिंग? सो इनकम इज अ
inadequate measure of the level of development. Now here is question arise that income is inadequate, so how can compare different countries? Then what will be? So income is important attributes, but it is not sufficient. Some other criteria is also important, like health structure, education, standard of the living are also the important factor for comparison different countries. Suppose that एक country है, उसके पास income तो बहुत है लेकिन education level बहुत ज्यादा down है. जैसे आप लोगों ने अपने इसमें देखा था पंजाब में क्या था स्टूडेंट्स, पंजाब का या हरियाणा का पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, बट एजुकेशन लेवल केरला का ज्यादा है. तो सेम एज इस सिचुएशन में क्या है कि इनकम को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बट अदर क्राइटेरिया को भी इंपोर्टेंस दे रहे हैं. तो यूएनडीपी का यही काम है स्टूडेंट्स, हेल्थ लेवल कंट्री का. हाउ कैन कैलकुलेट हेल्थ? आप लोगों ने कंट्री का हेल्थ देखा था, नेट अटेंडेंस रेशो, लिटरेसी रेट, some person are able to read and write any language, these are literate. So literacy rate, education level, health structure of a country also of the important factor for comparison different countries. UNDP is a very important body. UNDP एक ऐसा बॉडी है स्टूडेंट्स, यूएनडीपी फुल फॉर्म 1 मार्क्स में बोर्ड आपसे पूछ सकता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. दिस इज यूएनडीपी. इट इज वेरी इंपोर्टेंट. यूएनडीपी क्या करता है? इट इज पब्लिश अ रिपोर्ट एवरी ईयर. ये एक रिपोर्ट देता है यूएनडीपी. इंटरनेशनल लेवल पर है बेटा यूएनडीपी, एज जस्ट लाइक एज योर वर्ल्ड बैंक. गेटिंग? वर्ल्ड बैंक भी रिपोर्ट देता है. वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी बोथ आर डिफरेंट बॉडीज. वर्ल्ड बैंक कंपेरिजन करता है इस व्हाट बेसिस? यू हैव ऑलरेडी डिस्कस स्टूडेंट्स. किस बेसिस पे करता है वर्ल्ड बैंक? इनकम और पर कैपिटा इनकम. गेटिंग? वर्ल्ड बैंक तो रिपोर्ट देता है आपको. आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि विच कंट्री आर रिच, विच कंट्री आर एवरेज एंड विच कंट्री आर पुअर. योर इंडिया इज अ लो मिडिल इनकम अर्निंग कंट्री. इट इज क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको रिमेंबर होगा. सो वर्ल्ड बैंक एक अलग बॉडी है एंड यूएनडीपी एक बिल्कुल डिफरेंट बॉडी है. दोनों का वर्क सेम है, वो कंपैरिजन करता है. वर्ल्ड बैंक का क्या कंपैरिजन, वर्ल्ड बैंक का क्या इंपॉर्टेंस रोल है? वो कंट्रीज को उनकी इनकम के अकॉर्डिंग कंपेयर करता है. गेटिंग? पर पर्सन पर डॉलर कितना अर्न करते हैं कंट्री. लिसन स्टूडेंट्स अगेन, वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट देता है वो डिफरेंट कंट्रीज का अकॉर्डिंग टू देयर पर कैपिटल इनकम और नेशनल इनकम के. ऑन द अदर हैंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यूएनडीपी जो कंपेयर करता है डिफरेंट कंट्रीज को, वो नॉट ओनली इनकम बट डिफरेंट और वेरियस इंपोर्टेंट फैक्टर को कंबाइन कर एक रिपोर्ट बनाता है, एक इंडेक्स बनाता है. दैट इज HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? लिसन अगेन, आई एम रिपीटेड अगेन दिस लाइन. World Bank and UNDP both are different bodies and international bodies both are. World Bank provide data related to national income or per capita income. By the help of this data, we can easily compare different countries. Which countries are poor, rich, average, etc. Developed, underdeveloped and developing country by the help of per capita income. But UNDP, that is United Nations Development Program, it is a separate body which also compare different countries, but it takes some criteria rather than income. For example, criteria क्या होगा इसका? हेल्थ कंट्री का, एजुकेशन लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पर कैपिटा इनकम आल्सो. यू कैन सी दिस बॉडी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या पब्लिश करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है, एनुअली रिपोर्ट पब्लिश करता है विद यूएनडीपी. गेटिंग? और रिपोर्ट किस बेसिस पे बनती है स्टूडेंट? दिस रिपोर्ट कंपेयर कंट्री बेसिस ऑन दीज थिंग्स: एजुकेशन लेवल ऑफ द कंट्री, हेल्थ स्ट्रक्चर, हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री, पर कैपिटा ऑफ द कंट्री. इन सबको कंबाइन कर वो एक इंडेक्स बनाता है. क्या बनाता है? इंडेक्स बनाता है. और इंडेक्स ही क्या हो जाएगा आपका? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इट इज वेरी इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स. यहाँ पर दो तो आपको फुल फॉर्म ही मिल जाएगी, दैट इज यूएनडीपी एंड HDI. यूएनडीपी इज अ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. एक ऑटोनोमस है, इसका एक सेपरेट बॉडी है. वर्क क्या है इसका? डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने में हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? हाउ कैन? एक रिपोर्ट पब्लिश करता है और रिपोर्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है? ये डिफरेंट एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके एक एचडीआई एक रिपोर्ट बनती है। उसमें एट्रीब्यूट्स क्या होता है, कंट्रीज का एजुकेशन लेवल लेता है, हेल्थ स्टेटस और उन कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम। अकॉर्डिंग टू दीज index we can easily compare which country is developed, underdeveloped and developing. So I hope it is clear to students. This is your topic HDR, Human Development Report. I am again repeat this Human Development Report. Income is an inadequate measure for measuring or fair measure the level of development. So we have to use and UNDP use various components for comparison country like per capita income, education level and health structure. It is a very very important attribute, and by the help of these attributes HDI UNDP make index, and getting index means Human Development Index, or by the help of these index we can easily compare different countries. So I hope it is clear to students. In next I will try to understand that how can different countries comparison by the UNDP with data. It is clear to students. So for data I have to pause your video because it is a very time consuming process. Then after I will start your video. Getting? So students, you can see Human Development Report by UNDP. Getting? It is clear to students. Human Development Report कौन पब्लिश करता है? UNDP. Getting? और किस क्राइटेरिया को लेके? पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन लेवल ऑफ द कंट्री एंड हेल्थ स्टेटस. It is clear to students. By the help of these three component or criteria are combined, and the UNDP prepare a index. This is known as HDI, Human Development Index. It is clear to students. You can see by UNDP compare countries basis on the educational level of the country, health status of the country and per capita income. So students, here is some data regarding India and its neighbors for 2017. We have 6 countries here: Sri Lanka, India, Myanmar, Pakistan, Nepal and बांग्लादेश. सभी आपके आसपास की कंट्री हैं: श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश. यू कैन सी वी आर कंपेयर by the help of gross national income, that is per capita income, which measuring in dollar. Life expectancies at birth in 2017. What do you mean by life expectancies at birth, students? Life expectancies means average length of life of a person. And how can this calculate? This calculate easily total income of a country and divided by total population. So we have get per capita income. But your question is, how can calculate life expectancies at birth? Suppose that एक न्यू बेबी बोर्न हुआ है, कैसे आप बोल सकते हो कि ये इतने ईयर तक जिंदा रहेगा? So students, it is average concept and we can easily calculate. किसी particular areas में 1000% लेते हैं, 1000% वो लेंगे लाइफ एक्सेप्टेंसीज मेजर करने के लिए, 1000% वो लेंगे जिनकी नेचुरल डेथ हुई है. देन आफ्टर उनकी टोटल एज को काउंट करेंगे और डिवाइडेड बाय 1000. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. आई एम रिपीटेड अगेन. पहले क्या करना होगा हमें? 1000 नेचुरल डेथ हुई है उन पर्सन को लेंगे, देन आफ्टर उनकी एज का समीशन करेंगे और डिवाइडेड कर देंगे 1000 से. तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? लाइफ एक्सेप्टेंसीज एट बर्थ. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कॉलम इज व्हेन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल इज 25 एंड अबव. कितने स्कूल में स्टूडेंट्स अटेंड, नेट अटेंडेंस रेशो यू कैन सी. और लास्ट वन इज यू कैन सी HDI रैंक. स्टूडेंट्स, I have data in 2018. In 2018, HDI rank in the world. Getting? And HDI rank in above out of, ये जो रैंक आपको गिवन है टोटल वर्ल्ड की 180 कंट्रीज ली हैं. 180 कंट्रीज में से यहां पर रैंक दे रखा है. सो स्टूडेंट्स, UNDP जो कंपेयर करता है 180 कंट्रीज, टोटल उसने कितनी कंट्रीज दे रखी हैं? 180. और उन 180 कंट्रीज से ही उसने क्या दे रखा है?
HDI रैंक, HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, गेटिंग, और उन 180 कंट्रीज में यहाँ पर रैंकिंग दिया हुआ है इंडिया को विद नेबरिंग कंट्रीज. It is clear. So now we are able to, I hope we are able to explain or analyze this table. It is clear to students. In this table, you can see Sri Lanka is go ahead in all criteria in other country. Sri Lanka is a small country neighboring you, वो छोटी सी कंट्री है, बट इट इज गो अहेड. पर कैपिटा इनकम देखोगे इंडिया की तो उसकी ज्यादा है 11,326. लाइफ एक्सेप्टेंसी शेयर इज 75.5. यानी आप लोग ऐसा एक्सेप्टेशन करते हैं वहां के पीपल की लाइफ ऑफ लाइन कितनी है 75.5, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया 68.8. एंड यू कैन सी मैन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव 10.9. एंड यू कैन सी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट HDI रैंक. कितनी रैंक दे रखी है उसको 76. स्टूडेंट्स रैंक जितनी कम होगी उतना ही बहुत अच्छा होगा. ये बहुत देखना है. पर कैपिटा इनकम जितना ज्यादा होगा वो बेटर होगा. लाइफ एक्सेप्टेंसी जितना ज्यादा होगा वो बेटर होगा. स्कूलिंग में वो बेटर होगा. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रैंक जितनी कम होगी वही, जैसे फर्स्ट सबसे अच्छा है, सेकंड उससे खराब, थर्ड उससे खराब, फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सो 180 कंट्रीज में श्रीलंका का नंबर कितना था 76. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स, श्रीलंका इज अ गो अहेड. एवरी कंपोनेंट से अगर श्रीलंका को कंपेयर करें वो इंडिया से ज्यादा आगे है. गेटिंग, यू कैन सी इन सेकेंड इंडिया. आप लोगों का हर सेकेंड पर कैपिटा इनकम में इंडिया सबसे ज्यादा है. सॉरी, आपकी तो श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार एंड बांग्लादेश से आपकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है. इंडिया का लाइफ एक्सेप्टेंसी 68.8. pupil is 25 and above, those people are going to score 6.4, and our rank is 130 rank in out of 180 कंट्री में से हमारा 130. तो इट इज ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. अभी बहुत अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए, इसीलिए हम डेवलपिंग कंट्रीज में हैं. जो डेवलप्ड कंट्री है उनका इनिशियली रेज है. अभी देखो 180 में से हमारा कितने नंबर पे, हम 130, यानी हमारे 130 है, हमारे नीचे बहुत कम है. हमसे ऊपर कंट्री बहुत ज्यादा है जिनके यहाँ पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी, लाइफ एक्सेप्टेंसी ज्यादा होगी, लिटरेसी रेट ज्यादा होगा. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. वन मोर थिंग, यू कैन एनालिसिस दिस कंट्री, दिस टेबल. नेपाल एंड बांग्लादेश बोथ आर नेबरिंग कंट्री, बहुत छोटे छोटे से कंट्रीज हैं. यू कैन सी हियर बोथ लाइफ एक्सेप्टेंसीज. पहले बात कीजिए पर कैपिटा इनकम. इंडिया से पर कैपिटा इनकम बहुत क्या इसका कम है. यू कैन सी इंडिया का पर कैपिटा इनकम 6,353 एंड नेपाल का 2,471 एंड बांग्लादेश का 3,677. यानी इंडिया आगे है इन दोनों सिचुएशन में पर कैपिटा इनकम में बोथ कंट्रीज से. बट स्टूडेंट्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ एक्सेप्टेंसीज, your means your country's life acceptance is 68.8 and on the other hand you can see Nepal and Bangladesh is 70.6. यहाँ का एक पर्सन की लेंथ ऑफ लाइफ जो है वो 70.6 है. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश 72.8. सो this both countries go ahead India as in this situation of life acceptances only. But यहाँ पर आपसे पीछे ही है. You can see 136 यहाँ पर रैंक है बांग्लादेश की एंड नेपाल की रैंक जो है HDI वो 149. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. यू कैन सी पाकिस्तान इज आल्सो, पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम 5,331. लिटरेसी रेट भी हम लोगों से, लाइफ एक्सेप्टेंसी हम लोगों से कम है 66.6 गेटिंग, एंड स्कूलिंग भी कम है और रैंक भी 150 है. तो पाकिस्तान हम लोगों से HDI में पीछे है. बट यू कैन सी नेपाल और बांग्लादेश लाइफ एक्सेप्टेंसीज में ज्यादा है. और श्रीलंका की अगर बात करें तो वो सभी एरियाज में आप लोगों की कंट्रीज से आगे जाता है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, चाहे वो स्कूलिंग हो, स्कूलिंग ऑफ पीपल इज 25 एंड अबव, चाहे वो HDI रैंक इन द वर्ल्ड हो. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इजिली some data regarding India and its neighboring by the help of UNDP. ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? UNDP. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. और वो एक रैंक बनाता है. मैं बार बार बता रहा हूं, रैंक किस बेस पे बनाएगा? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट. और ह्यूमन डेवलपमेंट वो कंबाइंड डाटा मंगाता है सारी कंट्रीज से, पर कैपिटा इनकम का, लाइफ एक्सेप्टेंसेस का एंड स्कूलिंग, हाउ मेनी पर्सन आर एंगेज इन स्कूल, और देन आफ्टर वो रैंक देता है. It is clear to student. So this topic human development report is I hope clear होगा आप लोगों का. And your last topic
I will continue in your chapter. Your last topic is, so students, this is your last topic of chapter 1 development. This is it is a sustainability of development. It is a very important topic nowadays. Not only economics but geography is also and other subject also. Today's all साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सारे जितने भी एक्सपर्ट हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्ट्री से, साइंस से, सबका जो बेसिक थिंकिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा है. व्हाई? बिकॉज इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क ऑफ अ वर्ल्ड. नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट. आई होप आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मे भी आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे. तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट मीन्स एक डेवलपमेंट इज, यू आर अवेयर व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपनी प्रेजेंट फ्यूचर, अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए रिसोर्सिस को सेव करना. यानी सपोज दैट कोई रिसोर्सिस है, लैंड है, वाटर है, नेचुरल रिसोर्सिस, उसको हम प्रेजेंट में भी यूज कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन से कोई कंप्रोमाइज ना करें. ऐसा नहीं कि हमने उस रिसोर्सिस को यूज किया और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बचे ही ना. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे ये कंसेप्ट. यानी जो भी रिसोर्सिस हैं हमें प्रेजेंट लेवल पे उनको यूज करना है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचा के रखना है. दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? यू कैन सी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. इट इज ए डेवलपमेंट इन विच वी आर यूजिंग रिसोर्सिस. कैसा डेवलपमेंट? जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग रिसोर्सिस. हम रिसोर्सिस तो यूज करेंगे इन सच अ वे दैट वी आर नॉट कंप्रोमाइज विथ आर प्रेजेंट नीड एंड वी आर conserving the resources for future generation. It is clear to student? You can see again, it is a development in which we are using a resources in such a way. हम resources को इस वे में यूज करेंगे कि अपनी नीड्स, जो प्रेजेंट की नीड्स है उसको फुलफिल करेंगे. आर कंजर्विंग द रिसोर्सेस, और उसको कंजर्व करके रखेंगे फॉर द फ्यूचर जनरेशन. I hope it is clear to student. It is a development, very important. Definition 1 marks में बहुत ज्यादा रिपीट होती है. It is a development in which we are using resources in such a way that we are not compromising with our present need and we are conserving the resources for future generation. I hope it is clear to student. You can see with example, गंगा, यमुना, बहुत रिवर है आप लोगों की. होली गंगा बहुत अच्छा है. अभी आप लोग ऐसे कोरोना देखोगे उसमें बहुत ज्यादा साफ हो गई है वो, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर रखा था कि जो रिवर है उनको बहुत ज्यादा गंदा कर रखा था. आप सब अपने घरों में ऑटोमेटिकली नेचर ने उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है. गेटिंग? सो स्टूडेंट, जैसे गंगा है, बताते हैं कि पहले 30, 40, 50 और मे भी और ज्यादा टाइम पहले यमुना भी इतना ही उसका साफ और बहुत अच्छा पानी होता था. गेटिंग? लेकिन उसको हमने ऐसे यूज किया कि अब हम नहीं कर सकते, यानी हमारी, और अब हम उसको यूज कर रहे हैं, मे बी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो उतना भी ना बचे. सेम गंगा भी साफ है, मे बी वो फ्यूचर जनरेशन के लिए ऐसी ना रहे. तो हम लोगों को क्या करना है, गंगा को यूज करना है, गंगा नदी को यूज करना है, गंगा रिवर को यूज करना है. आइदर इज इलेक्ट्रिसिटी और आइदर इज वट एवर, बट उसकी जो मेंटेन करके रखना है, उसकी सस्टेन करके रखना उसको, कि फ्यूचर जनरेशन को भी वो एज इट गॉड गिफ्ट जैसे हमें मिली है वो सेम अदर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को भी मिले. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? अगर ऐसा हुआ तो बेटा हम लोग तो गंगा को यूज कर पा रहे हैं लेकिन नेक्स्ट जनरेशन उसको नहीं यूज कर पाएंगे. तो इस सिचुएशन में हमने अपना डेवलप किया, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको कंजर्विंग नहीं किया. तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए डेवलपमेंट इन विच वी people fulfill the needs by the help of these resources in present and conserving or remaining the resources as a safe for future generation also. Getting? You can see in agriculture sector, अगर हम लोग फील्ड है उसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा लगाएंगे तो अपनी नीड्स को तो हम फुलफिल कर पा रहे हैं, मे बी उसकी फर्टिलिटी उतनी लॉस हो जाए कि फ्यूचर जनरेशन उसमें से ग्रोइंग ना कर पाए. तो इट इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल, आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए सिंपल वर्ड.
रिसोर्सेज को यूज करना है, किस मैनर में यूज करना है, अपनी प्रेजेंट जनरेशन को फुलफिल करो, अपनी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करो बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और फ्यूचर जनरेशन के लिए वो एज इट इज रह जाए, उसमें कोई कमी ना आए। दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत सी नदियां ऐसी हैं जो पहले वो बहुत अच्छी थी और अब वो बची नहीं है, तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यू कैन सी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, डेवलपमेंट रिक्वायर क्या है, कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज लीडिंग टू डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लेट होते जा रहे हैं रिसोर्सेज। दिस इज अ वेरी वेरी problematic question. So in your NCERT I have example groundwater in India. You can see recent evidence suggest कि साइंटिफिक रिपोर्ट आई है। क्या साइंटिफिक रिपोर्ट आई है? जैसे आपने एक साइंटिफिक रिपोर्ट देखी होगी कि इन ग्रीन रिवोल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स सोइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है। गेटिंग अनदर साइंटिफिक रिपोर्ट यू कैन सी हियर, रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर serious threat of overuse in many parts of the country। यानी थ्रेट मिल रही है। क्या थ्रेट मिल रही है? हम लोगों को एक ऐसी चेतावनी मिल रही है कि ग्राउंड वाटर जो है कंट्रीज के मैनी पार्ट्स में वो नीचे जाता जा रहा है। मैनी पार्ट्स वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज, हम उसको ओवर यूज कर रहे हैं इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट ये डाटा लिया है, क्या 300 डिस्ट्रिक्ट्स का डाटा लिया है, हैव रिपोर्टेड ए वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ ओवर 4 मीटर ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर। यानी देखो स्टूडेंट्स, सपोज दैट ये आप लोगों का यू कैन सी, सपोज दैट वाटर पहले वेल होते थे या जो भी आप लोगों का, ये इसमें वाटर होता है, इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। ये ग्राउंड वाटर है, ये आपकी लैंड हो गई यहाँ पर, तो लैंड के नीचे वाटर होता है ग्राउंड वाटर। वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर सीरियस थ्रेट ओवर यूज इन ग्राउंड वाटर, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राउंड वाटर। तो लास्ट 20 ईयर में 300 डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट ने डाटा लिया है, ये आपका ग्राउंड वाटर लेवल जो है कितना नीचे जाता जा रहा है, 4 मीटर। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। अब ये 4 मीटर, बेटा 4 मीटर कितना होता है आप लोग देख सकते हैं, जितना हमारा एक मंजिल, एटलीस्ट 4 मीटर उतना पानी नीचे चला गया जमीन के। गेटिंग क्यों यूज किया? बिकॉज वी पीपल आर ओवर यूटिलाइज द वाटर। हम लोग क्या कर रहे हैं कि पानी को बहुत ज्यादा वेस्टेज कर रहे हैं, जितना ज्यादा हम वेस्टेज करेंगे वो पानी नीचे चला जाएगा। अभी चलो हमने 4 मीटर नीचे तक क्या किया, पहले हम लोग पानी को ऐसे ही ले लेते थे, देन आफ्टर क्या किया ना, पानी नीचे चला गया, हैंडपंप बंद हुए। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। देन आफ्टर क्या क्या, एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी लाए लोग और उन्होंने समरसेबल वो नीचे और ज्यादा उतार दिया, वहां से लेने लगे। अब हमने समरसेबल से पानी नीचे ले लिया, मे बी फ्यूचर जनरेशन बेटा वो और ज्यादा चला जाए। लास्ट 20 ईयर की रिपोर्ट है कि 4 मीटर नीचे चला गया। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। उधर ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी जो मॉडर्न HYV सीड्स हैं वो बहुत ज्यादा वाटर की नीड्स करते हैं, तो हम लोग क्या करें, ग्राउंड वाटर को नीचे से यूज किए जा रहे हैं, ओवर यूज किए जा रहे हैं, और वो लैंड के नीचे पानी नीचे जाता जा रहा है, ग्राउंड वाटर टैप उसका नीचे जा रहा है। तो लास्ट 20 ईयर का ही रिपोर्ट ये कि 4 मीटर वो नीचे चला गया। तो अगर यही कंटिन्यूस सिचुएशन चलती रही तो स्टूडेंट्स इट इज अ वेरी वेरी प्रॉब्लम फॉर नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन। वो लोग कहां से पानी लेंगे नीचे से? इट इज क्लियर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे ये कैसी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वी हैव टू, ये टॉपिक ही आपका हमें अपनी डेली लाइफ में भी ये अप्लाई करना है कि वी हैव टू यूज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना है। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। आई होप ये टॉपिक भी क्लियर होगा आपका। और टुडे इज योर फर्स्ट चैप्टर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, चैप्टर डेवलपमेंट। ये टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज फिनिश। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। देन आई होप आप लोगों ने सारे नोट्स प्रिपेयर किए होंगे एंड आई विल सेंड यू PDF of also this topic and previous topic which are covered today. It is clear to student. So it is sufficient. In next video we will start next chapter. Getting? Thank you so much 10th class.